Okay, so let's begin. Um, till where we had completed the chapter, we had completed till three levels of management: top level and middle level of management. Uh, Now let's just brush up on the things that we have learned till now. So let's just go to the start of the chapter. And nature and significance of management is the name of the chapter. First, what we covered was meaning of management. That management is the art of getting the things done through others. Then we discussed about different natures or different characteristics of management. We have a late okay, no, I'm on. So, then we discussed about different characteristics of management, that it is universal, it is goal oriented, it is generally done with two or more people involved, it is a continuous process, it does not stop at one particular point. It always has a human element involved. It is not managed by machines. It involves a decision process where a person has to take decisions regarding the business. Uh, then it is science, art, and profession. We discussed how management is an art, science, and a profession. Then importance of management. It is necessary in all fields. Optimum utilization of resources, accomplishment of objectives. The objectives that we set, management helps us to achieve those objectives. Useful for successful success of business. If your management is good, your business will thrive. If your management is bad, your business will fail. Increase in job opportunities. Yes, if management is good, company will expand, creating more employment. If management is bad, company will fail, leading it to unemployment of the employed people as well. Increase in profit. A good management knows how to reduce cost, and in optimum utilization of resources they can earn maximum profit. Social benefit and national motive. So if a company is doing good, it accesses the untapped human resource. Untapped human resources means unemployed people of the country, and they offer them jobs which lead to economical and social development and of the nation's economy. So management as a science, an art, and profession. Management is science because it has certain principles involved, it because of the cause and effect relationship, and there are those principles have been noted down, and which are universal in every area. Management is an art. It uh, one gathers a person gathers skills and expertise as long as he studies management, and then he can apply it proficiently. Okay, okay, okay. Sorry, sorry, sorry. I thought I had just shared my screen. Um, I'll just share it with you all also. Uh, yeah, I think now you can see. So, uh, management is a profession, and then we discussed how it is a profession where there is a specific requirement of knowledge. There are professional associations, then these associations make code of conducts, and then there are moral responsibilities and obligation of these things. Then we came to levels of management. We discussed there are three levels of management: top level, middle, and bottom level. So the top level of management is uh, the supreme authority of a enterprise, which involves the board of directors, the managing directors, general managers, chief executive officers, and others. Okay. uh, Now let's move ahead. So top management is also known as the higher level of management, which basic task of this is to lay down all the objectives of the company, to sanction budgets prepared by different departments, to take all the strategic decisions, which and to make all the long term plans for the company, to analyze all the report, to find out what is going right with the company, to find out what is going wrong with the company, how to change things if something is not working out. uh, uh, Overall, at the end, whatever profit, if company has made profit, what to do with that profit, that all decisions are taken by top level management. The middle level management. Now let's focus on what the middle level management is.
The middle level management is something between the top and the bottom level, as you can find out with its name. This level is also known as officers level. Why officers level? Because all officers related jobs are in this level, like production of officer, sales officer, purchase officer. So these are all middle level management managers. And what are their tasks? To prepare budgets, to to formulate the policies for the plans that are made by the top level management. So top level management do not make policies. They, what they do is they make they share their idea. Okay, we want to be this thing. We let's say the top level management, we are a beverage company. हमारी company का नाम है कोका कोला. So the top level management has decided that okay, we have to make sure that our thing is uh, we have to reach all the villages of India, even the small villages, cities, towns. We have to reach everywhere. Now, these middle level managers, what they'll do is they'll make the policy कि okay, the sales department will go there. वो ऐसे पिच करेंगे, वो छोटे रिटेलर्स को जो है फ्रिज ऑफर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. सो दे आर मेकिंग पॉलिसीज के हमें कैसे पता चलेगा आप वहाँ गए, तो आपको वहाँ जाके अपना लोकेशन कैप्चर करना होगा. सो दीज आर different policies that the middle level management takes to implement the plans of top level management. टू फोकस ऑन फंक्शनिंग ऑफ सब डिवीजन, जो भी उनके नीचे डिविजन्स हैं उन सब का फंक्शनिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका होता है. मैं आप लोगों को एक छोटा सा नोट्स दिखाना चाहता हूँ, सो दैट यू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस ऑल्सो. सी सिग्निफिकेंट सब डिविजन्स क्या होते हैं, you'll just get an idea with it. So today, after completion of this, I will share it with you. uh, इससे नहीं दिखेगा. लेट्स जस्ट गूगल इट फॉर अस. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चाहिए हमको. के के ओके फिर लेट्स सी. तो व्हाट ये जो है, ये टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर. ठीक है, ये कौन सा इंस्टीट्यूट, पहले तो ये कंपनी का नाम पढ़ लो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनॉरिटी हेल्थ एंड डिस्पेरिटीज. माइनॉरिटी हेल्थ एंड हेल्थ डिस्पेरिटीज, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है. इसके अंदर भी टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और बॉटम लेवल मैनेजमेंट होता है. आइए देखते हैं कैसे होता है. ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, यहाँ पे जितने भी टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव लोग हैं वो यहाँ पे होते हैं, और ये जो होते हैं ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं. फिर ये डिफरेंट उसके अंदर सब डिविजन्स ऑफ ऑफिसेज हो गए. अब इनके अंदर जो ब्रांचेस आ रही हैं, इनके अंदर जो ऑफिसर्स होंगे वो कौन होंगे, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होंगे. फिर जो ये डिविजन्स ऑफ क्लिनिक्स आ रहे हैं, ये जो डिपार्टमेंट हैंडल करेंगे, ये एरिया जो है, ये हो गए आपके बॉटम लेवल मैनेजमेंट. और फिर उनके अंदर में जितने भी लोग आ रहे हैं वो वर्कर्स हो गए. ठीक है, तो मैनेजमेंट के टोटल ही 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल एंड बॉटम. सो नाउ लेट्स जस्ट कम बैक टू आवर चैप्टर. तो बॉटम लेवल मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन एज सुपरवाइजर्स लेवल. सुपरवाइजर्स लेवल क्यों? क्योंकि इनका काम होता है जो एकदम लोअर लेवल पे एम्प्लॉयज होते हैं उनको मैनेज करना, उनसे काम करवाना, उनके ऊपर एकदम स्ट्रिक्ट वॉच करना कि जो ऊपर से पॉलिसीज बन के आई हैं क्या वो सही से इम्प्लीमेंट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं. इमेजिन करो एक स्कूल है, हमने स्कूल में बोल रखा है कि सब टीचर्स को जो है, यू कैन ऑल अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल, स्कूल में हर क्लास टीचर को डायरी साइन करनी है. सो इफ योर सुपरवाइजर मंजू मैम इज ऑन राउंड एंड शी चेक्स के अच्छा ये टीचर ने शायद आज डायरी साइन नहीं की,
तो इट इज़ हर टास्क नाउ टू टॉक टू द टीचर एंड आस्क कि ये डायरी क्यों नहीं साइन हुई है। सो ये पॉलिसी बनाई किसने? मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने, प्रिंसिपल ने। टॉप लेवल मैनेजमेंट ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया होगा कि वी वांट स्कूल टू बी कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज्ड और सब टीचर्स अपना टास्क अच्छे से पूरा करें। सो मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने पॉलिसी बनाई होगी एंड बॉटम लेवल मैनेजमेंट जो है वो क्या कर रहा है, ये पॉलिसीज के ऊपर वर्क कर रहा है कि ये क्या सही से मैनेज हो रही हैं या नहीं हो रही हैं पॉलिसी, टू सॉल्व जेन्युइन प्रॉब्लम्स। जो अब लोअर लेवल पे जो एकदम टीचर्स रहेंगे उनका प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? उनका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हमारे सुपरवाइजर, सॉल्व करेंगे, सीधी बात है। तो ये होता है सुपरवाइजर लेवल, इनका काम होता है इनका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क मोर होता है और मैनेजमेंट वर्क जो होता है वो कम होता है। इनको पॉलिसीज नहीं फॉर्म करनी होती है, इनको ये देखना होता है कि सही से चीज़ें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। तो अभी तक हमने इतना पढ़ा था। ये टेबल मैंने आपको याद करने का मैंने बताया था कि खाली एक साइड ऑफ द टेबल अगर हमने याद कर ली तो ऑटोमेटिकली हमको बाकी दोनों भी याद हो जाएंगे। So now let us move towards the next branch that we have not covered is, so we have done the recap, now we are starting fresh. Functions of management. Management, I'll just zoom it out so that you also can get a good look. Okay. So management should be done efficiently for the accomplishment of objective. uh, Correct, that is why management is put in place for in the first place, क्योंकि हमें अपने objectives complete करने होते हैं। For this management process is to be followed. A series of functions which are continuously performed for the accomplishment of predetermined objectives is known as process. प्रोसेस की डेफिनेशन दे रखी कि प्रोसेस क्या होता है, मैनेजमेंट क्या प्रोसेस फॉलो करता है। तो प्रोसेस होता है कुछ सर्टेन स्टेप्स दैट आर कंटिन्यूअसली परफॉर्म्ड फॉर द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ प्री डिटरमिनेड, जो हमने ऑब्जेक्टिव्स स्टार्टिंग में बना दिए थे उनके लिए जो हम बार बार जो स्टेप्स कंटिन्यूअसली कर रहे हैं उनको बोल रहे हैं प्रोसेस। Various business activities are arranged in chronological order and orderly manner for achievement of, hence management is considered as a process। तो ये मैनेजमेंट जो है, अब हम देखेंगे कि मैनेजमेंट के अंदर क्या स्टेप्स होते हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे मैनेजमेंट से ये होता है, मैनेजमेंट से वो होता है। अब हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट करते कैसे हैं, मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है। So there is a controversy among different authorities regarding various activities of management process. Management is considered as a subject of study or a field of knowledge. Therefore, it is natural, but various thinkers and scholars hold a different opinion. अब भाई मैनेजमेंट की है ना कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं बनी है। मैनेजमेंट क्या है कि भाई लोग सोचते हैं कि ये कोई फील्ड ऑफ स्टडी है, ये नेचुरल है, कुछ सोचते हैं नेचुरल नहीं है। तो इसीलिए अलग अलग लोगों ने जो है इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। जैसे वुड्स और डोनल ने है ना POSDC बनाया है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये पांच जो है, ये पांच हमें अगर कभी भी याद रखना रहा ना तो हम इन पांच से ही याद करेंगे। तुम्हारे जो मेन जो चैप्टर्स हैं बाहर वो भी यही चीज़ों पे हैं। तो एग्जाम के अंदर ये जो टेबल है ये हार्डली वैसे तो नहीं पूछा जाता है कि भाई किसका टेबल जो है वो कौन सा वाला था। तो हमें मेन जो है एक कून्स एंड ओडोनल याद रखना है, बिकॉज POSDC ये हम मेजरली ये ही यूज करते हैं। और एक और ये अगर याद करना है तो ल्यूथर गुलिक का याद कर सकते हो, बिकॉज इसके अंदर POSDC में सी जो है खाली चेंज हो जाता है, कोऑर्डिनेशन, और उसके बाद रिपोर्टिंग और बजटिंग। बाकी सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि देखो हर आदमी की अलग डेफिनेशन है, सो यू कांट मेमोराइज एवरीथिंग। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ये POSDC होता क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। तुम एक बार पढ़ लोगे फिर तुम्हें लगेगा अच्छा ये तो इतनी फालतू सी चीज़ है, इसमें क्या याद करना है। बिकॉज इट इज़ वेरी इजी, यू हैव टू जस्ट नो द वर्ड प्लानिंग। अगर आपको प्लानिंग याद है तो आप पूरा प्लानिंग के ऊपर अगर 3 मार्क का भी आएगा तो वो भी लिख के आ सकते हो। लेट्स रीड इट आउट। इवन गॉड कैन नॉट चेंज द पास्ट बट मैन कैन चेंज द फ्यूचर।
Planning means selection of facts for the expected result and to establish interrelationship between them, as well as observation of necessary activity and forecasting of the for the same anticipation. अभी पढ़ने में जाओ तो बहुत डिफिकल्ट डेफिनेशन लग रही है कि क्या लिखा है, ये नहीं याद करो। हम नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो कंफ्यूज कर रहा है। हम समझते हैं पहले क्या होता है। मैनेजमेंट begins with planning. When in advance, it is wisely considered what work, who will do, when, how, to what extent, when work is to be done, finished for. अब इमेजिन करो कि हम एक स्कूल है, हमको एनुअल फंक्शन करना है, तो एनुअल फंक्शन की प्लानिंग स्कूल कितने टाइम पहले स्टार्ट करेगा? फंक्शन से 5 दिन पहले तो नहीं हो सकती प्लानिंग स्टार्ट, क्योंकि आपको बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर करने के लिए, बहुत सारे काम होते हैं, तो वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। सो डिपेंडिंग ऑन योर ऑब्जेक्टिव आप प्लान उतना लॉन्ग टर्म या उतना शॉर्ट टर्म में करेंगे। अब जैसे आपको एक खुद का ही बिजनेस स्टार्ट करना है, तो क्या आपने आज सोचा और आप क्या परसों बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व। सो लेट अस अंडरस्टैंड how planning works. So planning means future forethought in the present. सही बात है, प्लानिंग की बेसिक डेफिनेशन ये है कि हम आज की चीज को नहीं प्लान करते, हम फ्यूचर की चीज को प्लान करते हैं। तो प्लानिंग इज नेसेसरी टू रिड्यूस रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व इन फ्यूचर, इज नोन एज प्लान। ठीक है, तो कोई भी टास्क वेन एवर वी आर थिंकिंग इन एडवांस for a particular work that we have to do in future, or who will do it, when will it happen, to what extent we'll do it, and achievement of predetermined objectives, and when is the work to be finished, कब हमारा वर्क फिनिश होगा, कब हम स्टार्ट करेंगे, ये सब चीज़ें क्या होती, ये these all are included in planning. All the activities of a business are undertaken in a systematic manner. Therefore becomes easy to achieve objectives. When alternatives are found at the time of defining objectives, planning becomes useful to select the best alternative. अब तुमने डिसाइड कर लिया तुमको बिजनेस करना है, तुम अब प्लानिंग करने लगे हो, तुमने सोचा कि चलो हम किराने की दुकान खोलेंगे आज, बट अभी तुम देख रहे हो कि यार किराने की दुकान में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तुम्हारे आसपास 3 किराने की दुकान खुल चुकी है, बट देन यू सडनली सी कि पूरे एरिया के अंदर शायद देर इज नो आइसक्रीम पार्लर, एंड देन नाउ यू हैव एन ऑल्टरनेटिव। तो प्लानिंग क्या करता है कि प्लानिंग आपको ऑप्शंस देता है, 3 से 4 ऑप्शंस देगा कि फ्यूचर में ये चीज़ें पॉसिबिलिटी है, and it gives you a chance well in advance of when do you want to take which option, which preference, which alternative do you want to select. Planning is a base for other managerial functions also, such as organizing, staffing, coordinating and controlling. तो ये जितने भी आगे जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शंस आने वाले हैं, प्लानिंग इज द बेस फॉर इट। प्लानिंग इज द ब्रेन ऑफ मैनेजमेंट। बहुत सिंपल सी अगर लैंग्वेज में एक ही लाइन में अगर याद रखना हो कि भाई क्या है, तो प्लानिंग इज द ब्रेन ऑफ मैनेजमेंट। का काम है सिलेक्शन करना, प्रेफरेंस देना, फ्यूचर फॉर थॉट करना। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजिंग। इफ प्लानिंग इज द ब्रेन, ऑर्गेनाइजिंग इज इट्स फिजिकल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, कि भाई वो ऑर्गेनाइजेशन में कौन टॉप लेवल की अथॉरिटी है, कौन बॉटम लेवल की अथॉरिटी है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्ट होता है ना, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो organization is a structure for the assignment of authority and responsibility among individual working for the achievement of common objective। तो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के थ्रू हम असाइन कर सकते हैं कि अच्छा ये इस पोस्ट पर होगा उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी इमेजिन करो कि तुम 4 फ्रेंड्स ने मिल के है ना एक कंपनी स्टार्ट की, और तुम में से एक जना शायद छोड़ के चला जाता है, तो अब उसका जो टास्क था वो कोई नया आएगा तो वो हैंडल करेगा ना। तो work never stops in a company.
ओके, वर्क नेवर स्टॉप्स इन कंपनी। सो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड होती है। इंडिविजुअल छोड़ के जाए नहीं जाए उससे कंपनी को कभी भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। Organization is a distribution of authority and responsibility among these sections, and group get clarified with the formation of organization structure. Issues like who will supervise, who will have authority and responsibility of work, interrelationship among individuals, etc. अब ये क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि अगर सब काम एक ही आदमी करने लगेगा तो ऐसा हो जाएगा ना कि बहुत ओवरलोड हो जाएगा और सबकी एक्सपर्टीज सब काम में हो भी नहीं सकती शायद। तो दिस breakdown of an institution or breakdown of an organization to different roles and responsibility, ये हमें हेल्प करती है टू आइडेंटिफाई किस जॉब के लिए क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है भाई। कि अगर आप सारा फाइनेंस हैंडल करने वाले हो तो आपको अकाउंट्स आना ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पूरे कंपनी का फाइनेंस हैंडल करूं और मुझे अकाउंट्स नहीं आता हो, दैट कैन नॉट वर्क। So this is what organizing is. If planning is the brain of the business unit while organization is its physical structure. The function of a brain in the human body is to take the intellectual decision. तो सही बात है, ब्रेन का काम क्या होता है? जितने भी थॉट प्रोसेसेस आते हैं, जितना भी प्लानिंग होता है, वो कौन करता है? ब्रेन करता है। एंड वाइल इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज डन बाय वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी है, जो कि ब्रेन ने जो डिसीजंस लिए होंगे उसको फुलफिल कर रहा है। Function of planning in a business unit is to take intellectual decision. In order to implement these decisions, distribution of work, authority and responsibility is delegated among employees of various departments. मतलब लोगों को हमने काम बांट दिया है। This is what is called as organizing. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन टीम में होता है, जैसे अभी तुम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड के अंदर एक टीचर्स डे के दिन सेलिब्रेशन प्लान किया था, तब मैंने जितने भी स्टूडेंट से बात की थी तो मैंने क्या बोला था? अकेले के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो, रोल्स डिवाइड करो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड करो, तो क्या है कि आप चीज़ें मैनेज बेटर कर सकते हो। याद है कि नहीं याद है आप लोगों को? हाँ वीरेन। अभी तक किसी को कोई डाउट है तो मेरे को पूछ सकता है, नहीं तो हम आगे बढ़ें। ये प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन, ये जो हमने दो पढ़े हैं, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, इसके अंदर किसी को भी कोई डाउट या समझ में आ रहा है? अगर आपको टाइप नहीं करना है अपना डाउट, यू कैन, समझ में नहीं आ रहा है कि टाइप कैसे करें, तो आप अपना माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। सी इज़ अ वेरी ओपन क्लास, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप नॉर्मली बात कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, दैट इज़ गुड टू सी। दीक्षिता, महेश को कोई डाउट नहीं है। वीरेन, डू यू हैव एनी डाउट्स? ओके, तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। Good to see that is going well. Now let's move toward the S part of POSDC. Staffing. नाम में ही मतलब छुपा। Employees are the arms and legs of the unit, according to Dr. George Tell. Staff is concerned with availing and maintaining satisfactory manpower. एक कंपनी के अंदर बहुत सीधा सीधा लॉजिक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट, बॉटम लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ये लोग सब कोई काम के नहीं है इफ देयर इज नो मैन पावर। नीचे जो सबसे ग्राउंड लेवल पे जो होता है एम्प्लॉयज, काम तो वही करते हैं ना। आज मैं एक स्कूल बना दूं जिसमें मैं ट्रस्टीज रख दूं, प्रिंसिपल रख दूं, सुपरवाइजर्स रख दूं और टीचर्स ना रखूं, तो क्या वो स्कूल एक सक्सेसफुल स्कूल बनेगा? बट ऑब्वियस सी बात है, नहीं बनेगा। बिकॉज स्टाफ, when there is a business organization, there will be existence of staff. Without the existence of staff, there will not be a business organization. Any organization without staff is like mere skeleton, मतलब वो living नहीं consider किया जाएगा, it will be dead. Activities of any business unit depends on its staff. Staffing is related with recruitment of employees for the right position at the right time in the right number with the right qualification. कितने राइट हैं इसके अंदर? चार राइट हैं। तो एक एक देख लेते हैं। इस स्टाफिंग का काम क्या होता है? एम्प्लॉयज को हायर करना। हायर करना मतलब उनको नौकरी पे रखना, उनको रिक्रूट करना फॉर द राइट पोजीशन। जिस जो जो पोजीशन वेकेंट है उसके लिए वो आदमी को हायर करना।
राइट टाइम पे, ऐसा नहीं कि मेरे को है ना आज अकाउंटेंट की ज़रूरत है और मैं 3 महीने बाद अकाउंटेंट हायर कर रहा हूँ। तो राइट टाइम पे हायर करना, राइट नंबर्स में हायर करना, मतलब कि मेरे को 5 अकाउंटेंट्स की ज़रूरत है और मैं 2 ही अकाउंटेंट हायर करूँ, तो वर्कलोड कितना ज़्यादा हो जाएगा उन 2 अकाउंटेंट्स पे। और मेरा वो लोग शायद फिर है ना इतना ज़्यादा वर्क प्रेशर में वो शायद ढंग से काम भी ना कर पाए। तो राइट नंबर हायर करना भी उतना ही ज़रूरी होता है विद द राइट क्वालिफिकेशन, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट। इफ़ आई एम नॉट क्वालिफाइड फॉर द जॉब, हाउ कैन आई गेट अ जॉब? तो राइट पोजीशन, राइट टाइम, राइट नंबर एंड राइट क्वालिफिकेशन। स्टाफिंग का काम क्या होता है? लोगों को रिक्रूट करना। इट ऑल्सो इंक्लूड सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ट्रांसफर, प्रमोशन, डिसमिसल, रिटायरमेंट एंड वेलफेयर एक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉय। अब ये समझ लेते हैं ये क्या है। सिलेक्शन मतलब हायर करना, ट्रेनिंग मतलब कि हमने कुछ मान लो कि हम एक कॉलेज गए और हमने कुछ बच्चे वहां से हायर कर लिया, उनको एकदम से थोड़ी समझ में आ जाएगा आते से कि अच्छा ये काम है मेरा। नहीं, उन्हें हमें पहले ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो ये स्टाफिंग की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ट्रेनिंग देना। ट्रांसफ़र करना, आपके पास 3 एम्प्लॉयज़ हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं आपके यहाँ पर, अब आपको एक दूसरा ब्रांच है आपका और वहाँ पे आपके है ना वैकेंसी आ गई है, बट अभी आप 2 एम्प्लॉयज़ से यहाँ काम चला सकते हो, तो इट इज़ बेटर दैट यू ट्रांसफ़र एन एम्प्लॉय। तो ये ट्रांसफ़र की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये भी स्टाफिंग की होती है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप बहुत बढ़िया कर रहे हो अपनी कंपनी, तो आपका प्रमोशन कौन देखेगा? वो भी स्टाफिंग ही देखता है। ठीक है, दीज आर द प्रोसेसेस। तो ये स्टाफिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, इनका प्रमोशन, किसी को निकालना हो अगर काम से, किसी की एज हो गई हो उसको रिटायर करना हो, तो ये भी स्टाफिंग की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड वेलफेयर एक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉयज, के एम्प्लॉयज को एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना जिसके अंदर उनको मजा है ऑफिस में काम करने में, ऐसा नहीं लगे जैसे स्कूल आ रहे हैं कि हमारा बिना मन के जब बच्चे स्कूल आते हैं ना नींद में रहता है, जैसे ऑफिस में नहीं जा सकते। So that is also enthusiasm and zeal of employees are boosted if they are satisfied। अगर एक एम्प्लॉय खुश है तो आप उसको एक्स्ट्रा काम भी दोगे तो वो खुशी खुशी कर लेगा। अगर वो उसको पसंद नहीं आ रहा तो आप उसको थोड़ा भी काम दो, वो एकदम मुंह सड़ा के ही रखने वाला है। अल्टीमेटली इट विल लीड टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि अगर आपके एम्प्लॉयज खुश हैं देन योर ऑर्गेनाइजेशन विल थ्राइव, क्योंकि आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस विल डिपेंड ऑन इट्स एम्प्लॉयज। हम कितना ही अच्छा है ना एक स्ट्रक्चर का स्कूल बना देंगे, हम कितने ही अच्छे है ना उसके अंदर आपको एसी क्लासरूम्स दे देंगे और एकदम बहुत बढ़िया एवी रूम्स बना देंगे और सब चीज़ ऑडिटोरियम्स दे देंगे, बट अगर टीचर्स अच्छे नहीं होंगे तो उस स्कूल में शायद स्टूडेंट्स। तो any business success would depend on its employees. At present, staffing also includes manpower planning, human resource development, evaluation of work, job analysis। अब ये स्टाफिंग के अंदर अब आज और भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड हो गई है कि जैसे मैन पावर प्लानिंग की कितने लोग चाहिए होंगे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनकी स्किल सेट का डेवलपमेंट, लोगों के वर्क जो उन्होंने पूरे साल एक्टिविटी की है उसका इवैल्यूएशन कि भाई उन्होंने जॉब अच्छा किया है या नहीं किया है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ ऑफ एवरी प्रोग्रेसिव मैनेजमेंट दैट अ सेटिस्फाइड स्टाफ इज इनवैल्यूएबल एसेट ऑफ द बिजनेस। स्टाफ अगर खुश है तो उससे बढ़िया एसेट आपकी कंपनी के लिए हो ही नहीं। सो स्टाफिंग समझ में आ गया होगा यहाँ पे, बहुत इजीली, बहुत, देखो बहुत याद रहने वाली चीज़ें हैं और ये पूरा चैप्टर बन के आने वाला है इन फ्यूचर। तो अभी हमें इसको खाली एकदम एकदम ब्रॉड वे में समझना है, बाद में इसमें स्पेसिफिकली जो समझना रहेगा वो जब चैप्टर हम डिस्कस करेंगे तब आ जाएगा। So now last two things are left in the functions of processes of management. We have discussed P, which is planning. We have discussed O, which is organizing. We have discussed S, which is staffing. Now comes D, which is directing। डायरेक्शन का मतलब होता है गाइड करना, सिंपल सी भाषा में लोगों को बताना कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, आपका काम ये है। अब हम पढ़ते हैं, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आए। Direction means to guide and to supervise the employees for the accomplishment of objectives. In order to achieve predetermined objectives, it is very important to direct and supervise employees of an organization effectively.
ये अगर हम लोगों को ढंग से काम के लिए, भाई ये तुम्हारा काम है, ये गाइड कर दें, और फिर हम उनके ऊपर वॉच रखें कि भाई वो सही से कर रहा है कि नहीं. दिस इज व्हाट डायरेक्शन इज. प्लानिंग इज डन आफ्टर डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स. एन आइडियल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज फाउंड. सबसे पहले प्लानिंग हो गई, फिर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बन गया, रॉ मटेरियल्स मशीनरीज आर परचेज, स्टाफ भी हम ले आए. अब उसके बाद क्या होगा, स्टाफ ले आए, उसके बाद डायरेक्शन तो देना पड़ेगा ना कि भाई ये काम तुम्हारा है, ये काम तुम्हारा है, ये रोल तुम्हारा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी. तो डायरेक्शन इंक्लूड्स, यहाँ से पढ़ते हैं ये लाइन से. डायरेक्शन इंक्लूड्स वेरियस एक्टिविटीज लाइक टू डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट्स टू सुपरवाइज देम. सबऑर्डिनेट्स मतलब आपके जो भी नीचे काम कर रहे हैं उनको सुपरवाइज करना, उनको गाइड करना कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. टू गिव ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन, टू फिक्स द वर्क, टू मोटिवेट, कुछ गलत कर रहे हैं तो उसे सही करवाना, उन्हें मोटिवेट करना कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हो और अच्छे से, और उन्हें एक लीडरशिप देना कि भाई मैं लीडर हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो करना है. डायरेक्शन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. एक मूवी बिना डायरेक्टर के नहीं हो सकती. बहुत अच्छी स्क्रिप्ट होगी, बहुत अच्छी एक्टिंग होगी, बट अगर डायरेक्टर का डायरेक्शन नहीं होगा तो एक्टर्स को कौन गाइड करता है, डायरेक्टर गाइड करता है. हमेशा मूवी में लास्ट नाम डायरेक्टर का क्यों आता है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट नाम वही होता है, डायरेक्टर. कि वो डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा कि फिल्म हिट होगी या फ्लॉप होगी. तो वो एक लीडरशिप जो प्रोवाइड करता है इसे डायरेक्टिंग बोलते हैं. कंट्रोलिंग, लास्ट POSDC के अंदर लास्ट में आ जाता है. तो कंट्रोल इज द फंक्शन ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस अमंग रिजल्ट रिसोर्स. कंट्रोल का मतलब, देखो वैसे तो तुमने कंट्रोल वर्ड सुना है, कंट्रोल मतलब लिमिट में रखना, चीज़ों को खराब नहीं होना. वही इसका मतलब है. फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग इज टू सी वेदर ऑल बिजनेस एक्टिविटीज आर डन विद द कंफर्मिटी ऑफ प्लानिंग और नॉट. ये प्लान जो हमने किया था, जो हमारे टॉप, जो एकदम ऊपर माई बाप है, जो हमारे बॉस हैं, जिन्होंने हमारे लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस, उन्होंने अपना प्लान बना दिया होगा, क्या उसी प्लानिंग से, क्या उसी पॉलिसी पे हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर. As per traditional concept, controlling means to have restriction on employee activities, to have strict approach, provision of punishment or fine in case of employee making mistake. तो ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, मतलब पुराने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कंट्रोल मतलब कि भाई लोगों के ऊपर स्ट्रिक्ट रहना, लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाना, अगर वो गलत काम करें तो उनके ऊपर फाइन देना, अगर उनको उनका काम में गलतियां हो रही हो तो उनको ट्रांसफर कर देना, उनके प्रमोशन रोक देना. ये सब नेगेटिव अप्रोच है कंट्रोलिंग के, और ये पुराने कॉन्सेप्ट. पॉजिटिव कॉन्सेप्ट और आज के टाइम पे कंट्रोलिंग क्या होती है, करेक्टिव एक्टिविटी होती है कि भाई गलत कर रहे हो तो उन्हें सुझाव दो कि ये ऐसे नहीं, ऐसे करना है. द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग इज नॉट टू रेस्ट्रिक्ट द एक्टिविटीज बट टू डायरेक्ट देम इन राइट डायरेक्शन. ऐसे कोई चीज़ के लिए बोलना नहीं कि ये मना है, यहाँ पे सही तरीके से गाइड करना. इफ दीज एक्टिविटीज आर नॉट डन एज पर प्लानिंग, द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग इज टू सी दैट मिस्टेक्स मेड इन पास्ट आर नॉट रिपीटेड इन फ्यूचर. देखो गलतियां सब करेंगे, कंट्रोलिंग का काम ये है कि जितनी भी गलतियां हम पहले कर चुके हैं अब वो वापस लाइफ में कभी ना हो. ये है टास्क कंट्रोलिंग का. तो POSDC ये जो है, ये आ सकता है, POSDC का डिस्क्रिप्शन जो है ये आ सकता है 3 मार्क के अंदर, ये आ सकता है 5 मार्क, डिपेंडिंग ऑन कितने मार्क का आ रहा है. ये आपको उतना लिखना है. ये 1 1 मार्क में भी आ सकते हैं, जैसे P बता दो क्या क्या होता है, प्लानिंग क्या होती है, या कंट्रोलिंग क्या होती है, या स्टाफिंग क्या होता है. तो 1 मार्क में हम 1 मार्क जितना ही लिखेंगे. वैसे मैंने जो नोट्स बनाया है उसके अंदर अगर ये 4 मार्क्स जैसे तक में भी आ जाता है तो मैंने कवर तो किया है. ठीक है, तो ये पढ़ लेना एक बार, और साथ साथ में टेक्स्ट बुक भी पढ़ना, बट मेजरली ये पढ़ोगे तो तुम्हारा कोर्स हो जाना चाहिए कवर, और क्वेश्चन आंसर आंसर कर सकते. अब आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन के ऊपर. कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ऑफ मैनेजमेंट. कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी फ्रॉम प्लानिंग टू कंट्रोलिंग. कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, मिल के जुल के काम करना. कोऑर्डिनेशन गिव्स अ सॉर्ट ऑफ assurance for the accomplishment of objective. No work remains incomplete or no work is duplicated and thus the work becomes easy.
कोऑर्डिनेशन का काम ये है कि भाई बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हो गए मेरे पास, अभी मेरे पास 40-50 एम्प्लॉयज़ हो गए, 60-70-100 एम्प्लॉयज़। वैसे तो बहुत कम होते हैं ये भी, बट मान लेते हैं कि इतने हैं। अब मैंने 3-4 लोगों को सेम काम करने को बोल दिया, तो अब क्या वो मेरे मैन पावर का सही यूटिलाइजेशन है? नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रिडंडेंट टास्क बना रहा हूँ कि मेरा काम वर्क जो है वो डुप्लीकेट हो रहा है। तो कोऑर्डिनेशन का टास्क ये है कि कोई भी काम इनकम्प्लीट ना रहे और कोई भी काम डुप्लीकेट ना हो, ये देखना। तो अब आ जाते हैं इसके मीनिंग के अंदर। टू ब्रिंग कोऑर्डिनेशन एंड हार्मनी अमंग डिफरेंट फंक्शंस कैरिड आउट बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट इन अ बिजनेस यूनिट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के मीनिंग में कोऑर्डिनेशन, टू ब्रिंग कोऑर्डिनेशन एंड हार्मनी, सब लोग मिलजुल के, सारे जितने भी अलग अलग फंक्शंस हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, मिलजुल के काम करें और अच्छा काम करें और खुश रहें। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं इसकी। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज राइट फ्रॉम प्लानिंग टू कंट्रोलिंग। सब एक्टिविटीज में यूज होता है। इट इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेशन डिपेंड्स अपॉन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर हम आपस में ढंग से बात नहीं करेंगे, मैं अपनी बात जो है ढंग से नहीं रखूंगा, तो हमारा कम्युनिकेशन हैम्पर होगा, और हैम्पर होगा तो हारमोनी नहीं रहेगी, दूसरे लोग नहीं समझ पाएंगे। कोऑर्डिनेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट कॉर्पोरेशन। अगर दो लोग आपस में नहीं साथ में काम कर सकते, कॉर्पोरेट नहीं कर सकते, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कभी भी नहीं हो सकता। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ बिजनेस रिसोर्स इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू, अब सीधी बात है, अगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता, बिकॉज फिर लोगों में काम जो है बराबर से बटेगा नहीं, और हमारा जो है मैन पावर जो भी है वो प्रॉपरली यूज नहीं होगा। इट इज अ पार्ट ऑफ एवरी एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट है, ये हर जगह पे। इट इज कंसिडर्ड द सोल ऑफ मैनेजमेंट। ब्रेन की बात कर ली, बॉडी पार्ट्स की बात कर ली, सब चीज़ की बात कर ली, बट ये जो है कोऑर्डिनेशन, ये आत्मा, इसके बिना जो है बिजनेस क्या है, ढंग से काम नहीं कर पाएगा। कि अगर मैन पावर को ढंग से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे तो हमारा कौन सा आदमी क्या काम कर रहा है हमें ये पता ही नहीं चलेगा। इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है? कोऑर्डिनेशन मेक्स मैनेजमेंट फंक्शन लाइक, ये इफेक्टिव बना देता है, बिजनेस एक्टिविटीज इजीली हो जाती है, कोई काम इनकम्प्लीट नहीं रहता। ये सब ऊपर वाला पॉइंट्स ही वापस रिपीट कर रहा है। कोऑर्डिनेशन लीड्स टू अकम्पलिशमेंट, सारे जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल हो जाएंगे। बैलेंस बिटवीन ऑर्डर एंड टाइम ऑफ बिजनेस, मतलब सब काम जो है वो लोग हार्मनी में काम करेंगे, बैलेंस रहेगा, जितना भी हमने ऑर्डर दिया है और टाइम ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज जितने टाइम में करनी थी वो सब होता रहेगा। अब आ जाते हैं इस चैप्टर के लास्ट पार्ट के अंदर। एक कंपनी के टोटल कितने पार्ट में टुकड़े कर सकते हैं हम? तो मैनेजमेंट के फॉर्म में जब आप एमबीए भी करने जाओगे, दीज आर द 4 मेजर ब्रांचेस जिसके अंदर आप एमबीए कर सकते हैं। तो एक कंपनी को इन्हीं 4 पार्ट्स में ब्रेक किया जा सकता है, विच इज मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस एंड प्रोडक्शन। तो अब ये चारों क्या क्या टाइप के मैनेजमेंट होते हैं और इनसे क्या होता है, हम देख लेते हैं, एक बार डिस्कस लेते हैं। हाँ, रिकॉर्ड। हाँ, लेट्स जस्ट फिनिश इट ऑफ क्विकली, इसमें बहुत कम चीज़ें ही बची है अब हमारे बीच में। तो मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग के अंदर क्या क्या आता है? तो मार्केटिंग इन्वॉल्व्स 4 P's। 4 P's मतलब प्रोडक्ट मिक्स बोलते हैं। प्रोडक्ट मिक्स के अंदर आती है 4 चीज़ें, विच इज़ द 4 P's ऑफ मार्केटिंग। प्रोडक्ट, प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ ऑल्सो नोन एज प्लेस, एंड प्रमोशन। ये 4 चीज़ें हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर। क्या सब चीज़ें इसी के अंदर आती है? तो पहले तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम क्या होता है? मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम ये होता है कि कस्टमर जो है उसके पहले तो नीड्स आइडेंटिफाई करना, कि उसको क्या क्या सामान चाहिए हो सकता है फ्यूचर। अब समझो कि एक आदमी होगा जो बैठा होगा, अरे यार लोगों को कम्यूट करने के लिए बसेस और ट्रेन्स में सब जगह इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं होती है। उसने देखा कि टैक्सीज सब ऐसे रेट्स का, उसमें बहुत ज़्यादा रेट्स होती है, कुछ फिक्स प्राइस नहीं है। अगर ऐसे कुछ फिक्स प्राइस निकाल सकें तो लोगों की कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और उस थिंकिंग से उसने ओला एंड उबर क्रिएट किया। तो
क्या किया उसने, पहले तो एक कस्टमर की नीड आइडेंटिफाई की और उसको कन्वर्ट किया किसमें, वो एक कंज्यूमेबल गुड्स या सर्विसेज में कन्वर्ट कर दिया कि यूटिलाइजेशन हो सके एक रिसोर्स का और कंपनी उसको कुछ मुनाफे पे बेच सके और कंपनी के लिए भी प्रॉफिट बने। तो प्रोडक्ट मिक्स के अंदर क्या आता है, प्रोडक्ट सबसे पहले तो प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो आपकी क्या कलर की होगी, क्या साइज की होगी, शेप, अपीयरेंस, वेट, प्रिंटिंग, पैकेजिंग। तो जैसे केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स की बात करते हैं या चोकोस की बात करते हैं, तो चोकोस का डब्बा कौन से कलर का होना चाहिए, उसके ऊपर कौन सा एनिमल प्रिंटेड होना चाहिए, बच्चों को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं उसको और कैसे चॉकलेटी दिखा सकते हैं ज़्यादा। तो ये होता है प्रोडक्ट मिक्स। तो उसका पैकेजिंग क्या है, उसमें कितनी गारंटी है, उसके आफ्टर सेल सर्विस कैसी रहेगी, में क्या क्या वेरिएंट्स निकाल सकते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, ये सब निकाल सकते हैं। तो ये सब प्रोडक्ट का पार्ट। प्राइस, कितने रुपए में बेचा जाए कि बेस्ट से बेस्ट मेरा मार्केट में बिकने। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, इसके अलावा सेल्स पॉलिसी और क्रेडिट पॉलिसी भी। भाई जिस कंपनी, जितने रिटेलर्स को मैं दे रहा हूँ वो कितने मतलब उनको कितने टाइम का क्रेडिट पीरियड है, कितने टाइम उधारी पे वो रह सकता है, मेरे को होलसेल के थ्रू बेचना है या रिटेल के थ्रू बेचना है या ठीक है। ये सब प्राइस फैक्टर के अंदर आ जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मतलब ये डिसाइड करना है कि डायरेक्ट सेल करना है या इनडायरेक्ट सेल करना है। तो ऊपर जो प्राइस है उसके अंदर हम होलसेल रिटेल का प्राइस डिसाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमको, हम खुद बेचेंगे एज कंपनी, हम डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करेंगे या हम डायरेक्ट रिटेलर्स को देंगे, हम या फिर होलसेल वालों को बेचेंगे, होलसेल वाले अपना देखते रहेंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करता है कि भाई किस लेवल पे बेचना है, कैसे बेचना है। इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू साइज एंड स्कोप ऑफ बिजनेस यूनिट। भाई मेरे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है किस लेवल तक बेचने की। डायरेक्ट तो मैं हर एक कस्टमर के घर पे पहुंचने से रहा, तो क्या बेस्ट एफिशिएंट वे है पहुंचने का, ये देखना। प्रमोशन, प्रमोशन नाम में ही मीनिंग छुपा है। कैसे ऐड कर सकता हूँ, कैसे मैं ना कितना मतलब कितना एडवर्टाइजमेंट में खर्चा हो सकता है, किस सेलिब्रिटी को मैं ला सकता हूँ ब्रांड का फेस बनाने के लिए। मेरे को सेल्समैन चाहिए क्या, जैसे एमवे या फिर तुमने देखा होगा दूसरे जो सेल्समैन आते हैं आर एक्वागार्ड के, जो घर आके बेचते हैं। तो इस वे में मैं सबसे ज़्यादा कस्टमर्स को एक्सपेक्ट कर सकता, इंटरेस्ट दिला सकता हूँ, अट्रैक्ट कर सकता हूँ। इससे मेरी सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। ये काम होता है मार्केट, कि अपना सामान बेचना। सिंपल भाषा में बोलूँ तो मार्केटिंग का काम होता है कि लोगों को बेचना है। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज पूरा जो स्टाफिंग में हमने पढ़ा था वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्यूमन रिसोर्सेज का होता है। Every business unit takes care of its asset like land, machine. The employees working in the business unit are its live asset. तो employees को जो मैनेज करते हैं वो कौन होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज। इनका काम होता है कि एम्प्लॉयज़ के एंथुजियाज्म, उनकी लॉयल्टी, उसको उनको डेवलप करते रहना, एम्प्लॉयज़ की स्किल, नए लोगों को हायर करना, उनकी ट्रेनिंग, ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। नए लोगों को हायर करना, उनकी ट्रेनिंग करना, उनका प्रमोशन कराना, उनको गाइड करना नेक्स्ट स्टेप में। तो जितने भी हमने स्टाफिंग में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़े थे वो सब ह्यूमन रिसोर्स पर आते हैं। और दो तीन लाइन पढ़ के देखते हैं। इट प्रोवाइड्स प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलप्स पर्सनल फॉर द जॉब। तो लोगों को डेवलप करना जॉब के लिए, उनको ट्रेनिंग देना, सही एम्प्लॉय को सही जगह पे प्लेस करना कि भाई तुम इतनी कैपेबल हो, तुमको ये पोजीशन पे रखेंगे, तुम्हारी कैपेबिलिटी ज़्यादा है, तुमको प्रमोशन। उनके जॉब इवैल्यूएशंस करना, उनके परफॉर्मेंसेस को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना। एफिशिएंट मैनेजमेंट कैन रिड्यूस लेबर टर्नओवर रेट। लेबर टर्नओवर रेट का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपकी कंपनी कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो कैन मेंटेन स्किलफुल एम्प्लॉयज फॉर अ लॉन्गर पीरियड इन कंपनी, अगर आपका एचआर डिपार्टमेंट स्ट्रांग है। एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर। कंड्यूसिव मतलब फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, जिसमें एम्प्लॉयज को अच्छा फील हो, जिसमें एम्प्लॉयज आके खुश रहे, जिसमें एम्प्लॉयज अंदर आके उनकी इच्छा हो के और ज़्यादा काम, which ultimately boosts their enthusiasm and efficiency. Values of the company are maintained and the business object। सीधी सीधी बात है, एचआर के अंदर सारा स्टाफिंग यही पॉइंट्स हैं।
एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीजेस, प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस इंक्रीजेस, बिजनेस का प्रेस्टीज। अगर आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज खुश हैं तो वो आपकी कंपनी की तारीफ करेंगे, तो ऐसे ही आपकी कंपनी का जो प्रेस्टीज है, जो बाहर जितनी भी बातें होती है वो सब अच्छी होंगी और आपकी कंपनी की जो गुडविल है वो मेंटेन रहेगी। Higher standard of quality of goods or services are maintained. Maximum utilize feeling of oneness among employees is developed. एम्प्लॉय को लगता है कि नहीं ये मेरा एक परिवार है, क्योंकि वो एक फीलिंग ऑफ वननेस आता है, तो ये एचआर डिपार्टमेंट का काम होता है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज पॉसिबल, रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर रेट इज सेम, जॉब satisfaction among employees is enhanced. Due to human resource management, employees get job satisfaction, which finally turns into an environment of income. तो ये स्टाफिंग वाले सारे पॉइंट्स इसके अंदर। ह्यूमन रिसोर्सेज का काम ये है कि एम्प्लॉयज को खुश रखना, एम्प्लॉयज को हायर करना, फायर करना, ये देखना नहीं करना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम में मीनिंग छुपा है, जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन होता है कम, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू आते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विद फाइनेंस फंक्शन ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल फंक्शन मीन्स द फाइनेंस फंक्शन ऑफ एक्विजिशन। अभी कंपनीज के अंदर एक्विजिशन मतलब कोई छोटी कंपनी को उसने खरीद लिया। मेरे पास अगर मान लो कि आज 5 लाख रुपीज़ है, तो 5 लाख रुपीज़ को कहाँ कहाँ पे किस किस को एलोकेट करना है, ये मेरा कौन हैंडल करेगा, ये मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैंडल। तो टू एस्टिमेट द फाइनेंशियल नीड्स, फंक्शन क्या क्या होता है भाई, कंपनी के क्या क्या इन फ्यूचर पैसों के रिक्वायरमेंट आने वाले हैं, ये पैसों की अवेलेबिलिटी कैसे करवानी है भाई। फ्यूचर में जो फाइनेंशियल प्लान चाहिए, मतलब कैसे 5 लाख रुपए चाहिए मेरे को 10 साल 1 साल बाद, तो वो कैसे मैं दूंगा। बजट बनाना कि भाई इतना इतना खर्चा होने वाला है। फंड्स अलोकेट करना कि भाई तुमने एनुअल फंक्शन करने के लिए 3 लाख रुपए मांगे थे, नहीं पर हम तुमको 2.5 देंगे, 2.5 के अंदर करके। टू डिसाइड कैपिटल स्ट्रक्चर एंड सेलेक्ट सोर्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल, कि भाई किस तरीके से लोन लेना है, कितना लोन लेना है, ये सब भी कौन डिसाइड करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसाइड करता है। कंपनी की फाइनेंशियल पॉलिसीज, उनका टैक्स देखना, सारे एसेट्स को मैनेज करना, ये सब कौन करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नाउ द लास्ट पार्ट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट का क्या होता है, अब ये जितना भी होता है ये जो है फिनिश्ड गुड रॉ मटेरियल से जो गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, जो हम प्रोडक्ट जो फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ये वो प्रोसेस है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नेचुरली अवेलेबल रॉ मटेरियल इनटू कंज्यूमेबल फिनिश्ड गुड्स विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स इन प्रोडक्शन। रॉ मटेरियल कंपनी ने खरीदा और उसको फिनिश्ड गुड्स में बना के ह्यूमंस के हेल्प से कन्वर्ट करना, ये प्रोडक्शन का काम। प्रोडक्शन मैनेजमेंट प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज which are capable to satisfy customers need। तो इनका काम ही ये है कि फाइनल जो है एंड प्रोडक्ट बना के देना रॉ मटेरियल। तो इसके अंदर क्या क्या होता है, इसमें भी प्लानिंग होती है, डिसाइड करना होता है कि भाई कौन सा प्रोग्राम है, कोऑर्डिनेशन होता है, और लास्ट में कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल रखना होता है कि भाई अगर ये अच्छे से नहीं बन रहा तो इसको रिजेक्ट करो, नया बैच बना। टू डिसाइड द प्रोडक्शन, इनके काम क्या क्या होता है, टू डिसाइड द प्रोडक्शन प्लान, और अ, भाई उन्होंने कैसे कैसे प्रोड्यूस करना है उसकी एक पूरी प्लानिंग कर ली, फिर उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करना है तो कर लिया। प्रोडक्ट डेवलप कैसे करना है, प्रोडक्ट मिक्स का वो उन्होंने डिसाइड किया। फिर कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए, कितने मशीन्स चाहिए, कौन सी मशीन चाहिए, मेरा जो क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसका लेआउट, बिल्डिंग कैसी दिखेगी, क्या होगा वहाँ पे, कौन कौन से सामान कहाँ पे कौन से एरिया में रहे। टू एस्टिमेट रिक्वायर्ड मटेरियल एंड अदर नीड्स ऑफ प्रोडक्शन, कौन सा सामान कब चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, ताकि मेरा प्रोडक्शन रुके नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हो कि मेरे लोग खाली बैठे हों या मेरी मशीन यूज में ना आ रही हो। टू हैव प्रोडक्शन कंट्रोल, टू हैव क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी पे ध्यान देना है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो क्वालिटी के अंदर। टू अंडरटेक एक्टिविटीज टू कंट्रोल एक्सपेंडिचर और कॉस्ट, इस मैक्स बेस्ट वे में हम मिनिमम रिसोर्स के साथ हम बेस्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं, ये भी प्रोडक्ट।
काम होगा, और मिनिमम टाइम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो इंट्रोड्यूस वेरिएशन एंड सिंप्लीफिकेशन। तो कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं ये प्रोडक्शन का काम। यहाँ पे हो जाता है हमारा चैप्टर खत्म। अब इस एमसीक्यूज जो है, मैं चाहूँगा कि आप लोग एमसीक्यूज इसके और क्वेश्चन आंसर, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। और मैं ये होमवर्क की डेडलाइन आपको दे देता हूँ, 26 को ये होमवर्क कंप्लीट करके आप लोगों को भेजना है। अब यहाँ ये वाली जो पीडीएफ है, इसमें सेकंड में मतलब 1 सेंटेंसेस के यहीं तक है क्वेश्चन, बट यहाँ पे नहीं, हमको PDF 2 डाउनलोड करना है, वो गुजरात टेक्स्ट बुक्स वाली ऐप से, और वहाँ से इसके जो आगे के क्वेश्चन है, पूरा चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर हमें 26 मई तक कंप्लीट करके स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजने हैं। So this was our session today, children. अगर आपके पास कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं, एंड वी विल stop the session.